बोला था ना सर, वो गाड़ी मीटिंग Thank you, sir. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और उनके कलीग्स जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूंछ, मिस्टर आमिर गुप्ता, मेंबर सेक्रेटरी JNK लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, SSP और उनके बाकी ऑफिसर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूंछ, रेजिडेंट बार एसोसिएशन, उनकी मेंबरान, LADCs, PFDs, media person, staffs of the judiciary, ladies and gentlemen. लोक अदालत के दिन बहुत बहुत मुबारक मेरा और शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मुझे काफी देर से मैं पूछ के लिए प्रोग्राम बना रहा था, लेकिन किसी कारण हो नहीं पाया, और लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद आज सुबह सुबह जो आप सबसे मिले, मेरे अपने यूनिवर्सिटी की याद दिलाए। यहाँ पे मुझे अपने हॉस्टलमेट मिले, जूनियर मिले, सीनियर मिले, यूनिवर्सिटी नहीं कॉलेज के हॉस्टलमेट भी मिले। Cases under NACT have been settled in this Lok Adalat by the esteemed bench. Therefore, I humbly request your lordships, Honorable the Chief Justice, to present these checks to these petitioners. Firstly, I will call on the dais Abdul Karim. I request Abdul Karim to please come on the dais and receive Shri Shahjad Hakim, Registrar General, High Court of Duty of Jammu and Kashmir, Shri Amit Gupta, Member State Poonch, Shri Tahir Mustafa Malik, Additional Deputy Commissioner Poonch, Shri Shaukat Amin Manhas, President Bar Association Poonch, along with the members of the bar, officers of the civil as well as police administration, officers of the prosecution, officials of the district judiciary Poonch, media persons, distinguished on my behalf and on behalf of my colleagues, members of the class today, to inaugurate the 4th National Lok Adalat of the year 2024 at Poonch. Today is the red letter day in the annals of district Poonch, as head of the judiciary of duty of JNK and Ladakh is gracing the function of 4th National Lok Adalat at Poonch and is blessing all of us. I heartily welcome my lord at this function. My lord is well established personality in our judiciary for delivering speedy and effective justice to everyone. The High Court of Duty of Jammu and Kashmir and Ladakh, under the dynamic leadership of the Honorable Chief Justice, is giving top priority to augment the basic judicial infrastructure in both the duties of JNK and Ladakh.
It is proud moment for our judiciary that we are able to reach even those living in the remotest area of the country, and it's a dream coming true for the marginalized section of the society. It gives me great pleasure to welcome you all to this 4th Nation Lok Adalat organized by the J&K Legal Services Authority, which was established with the objective of ensuring cost-effective justice in a speedy manner, especially to those who are unable to get it because of ignorance or poverty. Equal and fair justice is the distinguishing attribute of checking turmoil and dominance of the existence and development of common man, the rights and obligations of the parties, custom and uses, and the circumstances surrounding the dispute. I can party for successfully Shri Kashi Rabastan, Shri Shahjad Azim distracting their valuable time to come over all the way to Poonch to grace the occasion. Shri Vikas Kundal, Deputy Commissioner Poonch, who always stood by us in all of judiciary. I am also grateful to SSP Poonch, gratifying for me that as district judge of this court, I am free from the civil as well as the police administration, which is grateful to the members of the bar who have always rendered full cooperation. Principal District and Sessions Judge Poonch, Mr. Ahsanullah Parvez Malik, Additional District and Sessions Judge Poonch, Mr. Vikas Kundal, Deputy Commissioner Poonch, Mr. Shafqat Hussain, Senior Superintendent of Police, Poonch, Advocate Shaukat Amin Madhaz, President Bar Association Poonch, learned judicial officers, learned bar members, police officers, officers from Honorable Mr. Justice Kashi Rabastan and Chief of J&K Legal Services Authority, Mr. Shahzad Azim, Registrar General. इधर करो आ रहे आदिल आदिल नेशनल लोक अदालत जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ की कोर्ट इसके अंदर जो है इसको इस टाइम पर आज की जो 4th नेशनल लोक अदालत है पूरे हिंदुस्तान में इसका जो है इनेकाद बनाया गया था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स पुंछ में इसकी इनाग्रेशन के लिए चीफ जस्टिस साहब जो आए हुए थे। आज की इस लोक अदालत में पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे केसेस का जो निपटारा है वो तकरीम के ज़रिए से किया गया और चीफ जस्टिस साहब के हाथों से जो MACT के केसेस थे और जिन केसेस को लोक अदालत में डिस्पोज ऑफ किया गया था उसमें लगभग 40 लाख के जो चेक्स थे वो जो पटिशनर्स थे जिन्होंने वो पटिशन दायर की उनके हाथों से उन्हें नवाजा गया और बाकी मैट्रिमोनियल केसेस थे, बैंक रिकवरी केसेस थे, लैंड रेवेन्यू केसेस थे। इन सब केसेस को आज के दिन में जो है अफ़ाम तकरीम के ज़रिए से उनका हल जो है किया गया। लोक अदालत का करने का एक ही मकसद है कि लोगों को ये मैसेज देना कि वो अपने जितने भी मुकदमात अदालतों के अंदर हैं उन्हें मिल बैठ के जो है सलाह मशवरा करके कंप्रोमाइज़ करके अफ़ाम तकरीम के ज़रिए से वो हल करें, क्योंकि लोक अदालत के ज़रिए उनका पैसा भी बचता है, एनर्जी भी बचती है और जो फ़ी वगैरह उनको पे करनी पड़ती है वो भी बचती है। तो मेरा यही आपके माध्यम से मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पूरा कवरेज दिया। आज चौथी नेशनल लोक अदालत यहाँ पे लगी है और मैं चीफ जस्टिस साहब का जो यहाँ पे ज़ाते खुद यहाँ पे आए और उनके साथ पूरी टीम आई, रजिस्ट्रार जनरल जी आए और दूसरे आए, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, उनको मुबारकबादी देते हैं कि उन्होंने पहली बार पुंछ का दौरा किया। और ये नेशनल लोक अदालत जो पूरे हिंदुस्तान में मनाई जा रही है और जम्मू कश्मीर में भी मनाई, और इसमें चीफ जस्टिस साहब का इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने पुंछ को चुना और यहाँ पे आए और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और आप हैरान होंगे कि आज उनके आने से मैं समझता हूँ कि एक नई
जो लोक अदालत का जो कंसेप्ट था, जो क्या चाहिए, कैसे ये लोग छोटे छोटे मसले जो होंगे, मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट होंगे मियाँ बीवी के, दूसरे जो भी मसले हैं हर डिपार्टमेंट के, वो हल होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा मुस्बत और पॉजिटिव स्टेप था और यहाँ पे आए। आज पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में बन रही है और यहाँ भी हो रही है। मैं मुबारकबाद भी देता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का कि वो अपनी टीम को लेकर यहाँ पे आए। और यहाँ पे अपने सेशन जज और इनकी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ के डीसी साहब और एसपी साहब, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने पूरा साथ दिया और सबसे बढ़कर यहाँ की बार ने जो रोल अदा किया यहाँ पे बैठ के, बार बेंच और एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जी थी, उन्होंने मिल के एक स्वागत किया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का। तो ये एक मैसेज आता है बाहर के लोक अदालत का कंसेप्ट क्या है, ADR क्या है, यहाँ पे किस केसेस लगते हैं। तो इससे एक बड़ा अच्छा आशायत हुई होगी, इससे ये बाहर जाएगा मैसेज, पूरी दुनिया को पता चलेगा, पूरे जम्मू कश्मीर को और यहाँ के लोगों को भी पता चलेगा, क्योंकि ये पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है। तो आज सबसे बड़ा शुक्रिया हम यही नजराना मतलब कहना चाहते हैं कि ये एक बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट्स हमारे लिए, पुंछ के लिए। तो एक चीफ जस्टिस साहब का आना आज 1 साल पहले भी वो आए थे और यहाँ के उन्होंने लोकल मसाइल भी देखे। देखिए यहाँ पे ऑडिटोरियम बन रहा है, बार रूम बन रहा है, उसकी फंडिंग का मसला था, वो मसला हल हुआ। यहाँ पे अनाज स्टोर रूम था, यहाँ पे हम चाहते थे कि ये वापस मिले। यहाँ पे जुडिशियल कॉन्फ्रेंस हॉल बने, उस पर भी उन्होंने संज्ञान लिया। और यहाँ पे मिनी जो हमारे जो नेल बच्चे हमारे वकील आए, उनके लिए जो हमारे चैम्बर बने, ये बने और दीगर मसाइल फंडिंग के हवाले से दूर सुनी। मैं यहाँ की सिविल जजेस का जितने भी डिसीजन साहब से लेके नीचे तक और सेक्रेटरी डेल्सा का भी और तमाम लोगों ने जिन्होंने कंडक्ट किया प्रोग्राम, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खासकर एडमिनिस्ट्रेशन का, सिक्योरिटी के लिहाज से पूरा तामन दिया। और आप मीडिया हज़रात का बहुत शुक्रिया कि ये एक बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट था। इसका ये आपने ये जो कैद किया, बंद किया आपने कैमरा में, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। ये बार बार जब होता हो रहेगा ना, तो ये लोगों को की याद ताज़ा किया करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 10 मिनट का वक्फा है, वो गया है। अच्छा ठीक है। अब मुझे दिखा दो वीडियो पर मुझे, और ये सरदार जी है ना ABP, ठीक है वो डेल्सा के केसेस इधर है, बात करो जरा उसकी जरा। चौथी नेशनल लोक अदालत का इनकाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुंछ में किया गया। आज हमारे जम्मू कश्मीर UT के और लद्दाख की UT के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ताशीर अबस्तान, वो इस लोक अदालत में वो खुद शामिल हुए। उनके साथ रजिस्ट्रार जनरल जी थे, उनके साथ सेक्रेटरी डेल्सा भी थे उनके साथ। तो एक बहुत बढ़िया यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधन किया। लॉयर्स की कम्युनिटी थी, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी, DC, SSP और काफ़ी लोग यहाँ पर थे, स्टेक होल्डर्स। तो जो हमारे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बहुत इंस्पायरिंग यहाँ पर लेक्चर किया और उन्होंने कहा कि देखें जो ADR है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो टेक्निक्स हैं वो CPC की सेक्शन 89A के तहत आती हैं। उसके तहत जो जजेस का जो पहला काम होता है कि वो जैसे ही उनको केस मिलता उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि केस की अगर ADR के द्वारा सेटलमेंट हो सकती है, मीडिएटर्स हैं यहाँ पर, उनके द्वारा सेटलमेंट हो सकती है, पहली वो कोशिश करेंगे। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ किस्से भी सुनाए, जब वो लायर थे, जब वो जज ऑफ द हाई कोर्ट थे, कैसे उन्होंने पर्सनल पेन लेकर जो है कुछ मैट्रिमोनियल मैटर्स को सेटल किया। तो एक बड़ी उनकी इंस्पायरिंग यहाँ पर प्रेजेंस थी। बड़ी खुशी से उनके लिए यहाँ पर बार एसोसिएशन पुंछ ने यहाँ पर बहुत अच्छा एक अरेंजमेंट लंच का भी किया हुआ था। थोड़ी देर वो यहाँ पर बैठे, लोगों से इंटरेक्ट किया, बहुत बढ़िया। अभी देख रहे हैं नेशनल लोक अदालत का जो आगे कार्रवाई जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब पुंछ की उनकी क़यादत में यहाँ पर चल रहा है। MACT के केसेस काफ़ी डिसाइड हो गए हैं, बैंक केसेस हैं, पैटी क्रिमिनल केसेस हैं, मैट्रिमोनियल केसेस हैं, ये सभी। क्योंकि लोक अदालत का जो मकसद है, ये नेशनल लोक अदालत है, क्योंकि ये पूरी हिंदुस्तान में इस वक्त है, ये खाली जम्मू कश्मीर पुंछ में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज का दिन जो है नेशनल लोक अदालत होती है। 14 दिसंबर को हर साल होती है। तो ये चौथी नेशनल लोक अदालत है। आप देखें यहाँ पर जो सेटलमेंट होती है वो विन विन होती है।
कोई किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, दोनों पार्टियां आपस में मिलकर सेटल करती हैं, एमिकेबली सेटलमेंट होती है। जैसे चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि सालों साल कई जनरेशन 3 जनरेशन लग जाती हैं सिविल में जो दीवानी जिंदगानी। तो कहते हैं कि सरकार ने हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुडिशरी ने एक्टिविज़म बताते हुए कि ये एक नया रास्ता जो ADR का निकाला है उसके द्वारा जो सेटलमेंट होती है, तो उससे क्या होता है कि लोगों को सेटिस्फैक्शन होती है कि उनने कोई चीज़ लूज़ नहीं की है। तो देख रहे हैं यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आज देखें कोर्ट पैक्ड है, जितने भी कोर्ट्स हैं बेंचेस बने हुए हैं, तो वहाँ पर जजेस जो हैं वो बैठ कर जो है नाट बतौर जजेस काम कर रहे हैं, बतौर मेंबर ऑफ द लोक अदालत लोग एक्सेसिबल हैं। जजेस के पास नॉर्मली वो एक्सेसिबल नहीं होते हैं, लेकिन आज लोक अदालत के दिन वो एक्सेसिबल होते हैं, पार्टीज़ को कन्विंस करते हैं और उसके बाद जो उनके केसेस की सेटलमेंट होती है। आज हज़ारों केसों का जो निपटारा जो है इस नेशनल लोक अदालत द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, ऊपर स्पेशल जज बैठे हुए हैं, मुंसिफ बैठे हुए हैं, उधर से जलसा के सेक्रेटरी बैठे हुए हैं। तो ये सभी बेंचेस जो हैं आज जो भी अजाला हो सकता है, जो भी केसेस इस रूटीन लिस्ट में आए हैं तो उनका वो डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बढ़िया पुंछ की खुशकिस्मती है, पिछले साल भी चीफ जस्टिस पुंछ आए थे, इस साल भी चीफ जस्टिस आया है। तो ये हमारे लोगों की खुशकिस्मती है कि बार एसोसिएशन ने जो कुछ मसले थे हमारे, जैसे ये हमारी जो बिल्डिंग है हमारी इनकम्प्लीट है, यहाँ पर एक ऑडिटोरियम बन रहा है, उसके अलावा चैम्बर्स बन रहे हैं, लाइब्रेरी बन रही है, उसके लिए फंडिंग की कमी थी। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने खुद पेन लेते हुए कहा कि पहली फुर्सत में उस चीज़ को भी हम देखेंगे, पूरा करेंगे। और जो भी वकीलों की प्रॉब्लम्स हैं, चैम्बर्स की प्रॉब्लम्स हैं और बाकी कई किस्म की जो प्रॉब्लम जुडिशल अफसर्स को प्रॉब्लम है, यहाँ पर स्टाफ की प्रॉब्लम, स्टेनोज की प्रॉब्लम, सभी चीज़ों का चीफ जस्टिस साहब ने संज्ञान लिया। हमें पूरी आशा है कि जल्द अज जल्द वो इनका अजाला करेंगे। और ये नेशनल लोक अदालत जो है, मैं पुंछ की आवाम को आपके चैनल की वसादत से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेशनल लोक अदालत में आइए। डिस्प्यूट्स को आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ADR एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक ऐसा सिस्टम है हमारे पास जहाँ पर विन विन सिचुएशन होती हैं, दोनों पार्टियाँ खुशी से अपने केसेस का हल करते। आइए वो डिसाइड करिए, ये जवानी जिंदगानी वाली जो है ना, दीवानी जिंदगानी वाला का मसला ख़त्म करें। और मैं फिर आपके चैनल की वसादत से ये खुशी व्यक्त करता हूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब यहाँ पर आए और आज उनने हमारी हौसला अफजाई की और हमारा जो ये कार्यक्रम बहुत कामयाब किया। धन्यवाद। रुहाना राशिद। आ जाओ बेटा, इधर इधर इधर।